Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. We are here with our lecture number 8. But let's see what we did in the last lecture. In the last lecture we were discussing about recruitment sources, in which we discussed about the internal researches, the employee referrals, recommendations, external searches, then there were some alternatives, and then in the end we talked about the meeting the organization, in which we discussed how you people can manage your CVs, your resumes, so you can have better chances of getting jobs. So in the last lecture we were discussing about this internal researches and external researches. Now the main difference between them was that when you have a vacancy in the organization and you want to fill that vacancy, you've got two options. One, that you can hire somebody from within your organization and promote that person or transfer that person to that place, whichever was empty. The second option was that you can hire somebody from outside the organization. And the in-between thing was that you can ask somebody who's already working with you to contact somebody who is from the outside the organization, and then you can have him as a referral. Your current employee will give you a reference of somebody from the outside from the organization, and that is going to provide you with the filling of vacancy. Then we talked about some alternatives, that there are some companies which can provide you with number of good applicants, और उनके पास database maintained होती हैं जिसमें उन्होंने categorize किया होता है कि किस किस्म के लोग जो हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं. जब ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है लोगों की तो वो उनसे कांटेक्ट करती है, और जो एजेंसीज होती हैं वो उनको डाटा प्रोवाइड कर देते हैं, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस इजी हो जाता है. देन वी टॉक्ड अबाउट दिस मीटिंग द ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी सेड दैट व्हेन एज योर स्टूडेंट्स योर करंट जॉब इज टू फाइंड अ जॉब, एंड फॉर दैट यू हैव टू मेंटेन योर सीवीज, मेक योर सीवीज, एंड उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक तो हमने डिस्कस किया कि वाइट पेज पे अच्छी सीवी बनी हो, रीडेबल फॉन्ट हो, और उसमें जो आपने वॉलंटरी एक्सपीरियंस किया हुआ वो भी ऐड करें, अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करें, अपने प्रोजेक्ट्स ऐड करें, और उस सीवी को प्रूफ रीड करें बार बार, ताकि आपकी सीवी जो है वो अच्छे तरीके से बने, और जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हों. आज का टॉपिक हमारा है एम्प्लॉय सिलेक्शन. एम्प्लॉय सिलेक्शन क्या है, किस तरह होती है, और कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं, वो आज हम देखते हैं. बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन. सो द प्रोसेस ऑफ केयरफुली स्क्रीनिंग द एप्लीकेंट्स टू सिलेक्ट और हायर द बेस्ट ones. And at the same time we say that employee selection is the process of matching people and jobs. Now how do we do it? The best definition of employee selection can be that when you've got a pool of candidates, now you have to screen out of them and shortlist out of them to reach to the best candidates that are available to your pool of that applicants. And out of those applicants, when you will find the best ones and you are going to hire them, then they'll have a possibly they are going to stay with the organization. और आपको भी अगर 100 applications आई थी और आपको सिर्फ 2 लोग रखने थे, तो ये बड़ा केयरफुल प्रोसेस आपको करना पड़ेगा कि वो 2 बेस्ट वंस आप चूज करें और फिर वो आपके साथ स्टे भी करें. और दूसरा हमने कहा कि एम्प्लॉय सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ मैचिंग पीपल विद जॉब्स. मैचिंग पीपल विद जॉब्स का मतलब यह है कि जिस किस्म की लोगों की स्किल्स, क्वालिफिकेशन, इंटरेस्ट्स होंगे, उस तरह की अगर आपके पास जॉब्स हैं तो उनको मैच करें. ऐसे लोग रखें जो आपकी जॉब के साथ मैच करते हैं. लेट्स सपोज अगर आपको एक अकाउंटेंट हायर करना है, तो जो 100 लोगों ने आपके पास अप्लाई किया है उसमें बेस्ट अकाउंटेंट कौन हो सकता है? बिकॉज फॉल्स एप्लीकेशंस भी आई होती हैं, बहुत सारे लोग इररिलेवेंट एजुकेशन के साथ भी होते हैं, बहुत सारे रेलेवेंट के साथ भी होते हैं, बट नेसेसरी स्किल सेट नहीं होता उनके पास, नेसेसरी स्किल पैकेज नहीं होता. तो आपको जॉब्स को और लोगों को जिन्होंने आपके पास अप्लाई किया है या मार्केट में है,
उनको मैच करना है, एंड यू हैव टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द एप्लीकेंट्स। और जितने आपको लोग चाहिए और जितने आपके पास एप्लीकेंट्स हैं उनमें बेस्ट वन को आप चूज करके जॉब के लिए रखेंगे। नाउ द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड पे, देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स, जिसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं टिपिकली, विच मीन्स दैट अ फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस माइट नॉट फॉलो ऑल द स्टेप्स। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसमें से कुछ स्टेप फॉलो करती होंगी और कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें से डिफरेंट स्टेप्स करती होंगी, और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉन्टेक्स्ट आपको इन स्टेप्स में थोड़ा चेंज करना पड़ता है, बट जनरली इन स्टेप्स में से ही लोग यूज करते हैं। अब ये जो सारे स्टेप्स हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड द प्रेडिक्टर्स। ये क्या प्रेडिक्ट करेंगे, किस तरह प्रेडिक्ट करेंगे? कहने का मतलब ये है कि अब आपके पास एक पूल ऑफ कैंडिडेट है, 100 है, 200 है, 300 एप्लीकेंट्स हैं। आपको किस तरह पता चलेगा कि आउट ऑफ दोज 100 और 200 एप्लीकेंट्स बेस्ट कौन से, प्लस उस जॉब के साथ कौन सबसे ज्यादा मैच कर रहे हैं? तो इसको प्रिडिक्ट करने के लिए आपने ये कुछ स्टेप्स रखे होते हैं जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। और उस सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका स्टेप है इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू, फिर कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेंट फॉर्म, एंड देन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट्स, ये डिफरेंट होते हैं, देन कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यूज, ये इंटरव्यूज के आगे टाइप्स क्या आते हैं वो भी इंशाल्लाह देखेंगे इसमें। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करते हैं आप, देन कंडीशनल जॉब ऑफर देते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन इफ इट इज रिक्वायर्ड वो आप करते हैं, और परमानेंट जॉब ऑफर आप लेटर दे देते हैं उसको। फिर वो एक्सेप्ट करता है नहीं करता, उसके अकॉर्डिंगली हमें मूव करना पड़ता है। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं पहले डायग्रामेटिक फॉर्म में कि किस तरह हमें सिलेक्शन प्रोसेस का जो ये डायग्राम है ये हमें गाइड करता है। तो आप देखें कि सबसे टॉप पे हमारे पास इनिशियल स्क्रीनिंग है, जिसका अभी हम स्टेप्स के बारे में बात कर रहे थे, और यहां हमारे पास दो किस्म के एरोज जा रहे हैं, वन इज गोइंग टुवर्ड्स द अदर स्टेप एंड द अदर वन इज गोइंग टुवर्ड्स द रिजेक्ट एप्लीकेंट बार। अब यहां देखेंगे ये कि अगर इनिशियल स्क्रीनिंग आपने की, ये क्या होती है अभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, बट पहले आप देखें कि इनिशियल स्क्रीनिंग आपने की, अगर तो वो इनिशियल स्क्रीनिंग में कैंडिडेट पास हो जाता है तो वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता है, विच इज कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन। अगर फेल टू मीट मिनिमम क्वालिफिकेशन तो फिर आप उसको इधर से रिजेक्ट कर देते हैं। तो दैट मीन्स यहां कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट होके नीचे आ जाएंगे सेकेंड स्टेप पे, और कुछ कैंडिडेट जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अब ये कौन सा हमने प्रोसेस कौन सी बात की थी कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट्स टू रीच टू द बेस्ट वंस। अब सेकेंड स्टेप पे आप देखेंगे कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन। अगर तो किसी ने कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन प्रॉपर की है और उसमें वो पास हो जाता है तो देन दैट पर्सन विल मूव टुवर्ड्स द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, अदरवाइज द सेम थिंग विल हैपन एंड द पर्सन विल बी रिजेक्टेड। इसी लेवल पे आप उसको कंसिडर करना बंद कर देंगे, आप मजीद उसको नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जाएंगे। तो दैट मीन्स लेट्स सपोज इफ वी हैड 200 एप्लीकेंट्स, उनमें से 180 जो है वो हमारे पास होके इस स्टेप तक आए हैं, एंड देन 160 हमारे पास यहां तक आए हैं। 160 को हमने क्या किया, 160 का हमने टेस्ट ले लिया। अब टेस्ट कैन बी इन एनी फॉर्म, आप पेपर पेंसिल टेस्ट ले सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले सकते हैं, और उस टेस्ट में जो जॉब के रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे कैंडिडेट से कि उसको किस तरह आंसर करता है, कितने उसके आंसर्स ठीक होते हैं, कितने आंसर्स गलत होते हैं। इसमें आप ओपन एंडेड भी यूज कर सकते हैं, क्लोज एंडेड भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये कि या तो आपको क्वेश्चन लिख के दे देंगे और उसको कहेंगे जिस तरह से मर्जी वो ओपनली उसका रिप्लाई कर दे टाइप करके, और क्लोज एंडेड में क्या कर सकते हैं कि आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ऑप्शंस दे देते हैं 1 2 3 4 5, और जितनी भी आपने ऑप्शंस देनी है, येस नो, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, या आप उसको डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें आपने डिफरेंट ऑप्शंस दी होती हैं और उसको एक सिलेक्ट करनी पड़ती है, ट्रू फॉल्स होती है। ये सारे जो हैं क्लोज्ड एंडेड के जो है एग्जांपल्स हैं। तो टेस्ट लेने के बाद आपको पता चलता है कि कुछ कैंडिडेट्स इसमें से पास हो गए और कुछ कैंडिडेट जो है वो पास नहीं हुए। तो लेट सपोज कि 100 कैंडिडेट जो है वो हमारे पास होके इस स्टेप से स्टेप की तरफ आ गया है, जिसमें क्या है कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यूज। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यूज जो है
और यहाँ जो टेस्ट से पास नहीं हुए थे उनके साथ सेम ट्रीटमेंट हुआ कि वो फेल हो गए टेस्ट में और उनको आपने रिजेक्ट कर दिया. यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर देम एनी मोर. कंसिडरेशन आपने खत्म कर दी उनके लिए, बिकॉज वो सारे स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे. और अगर टेस्ट में मार्क्स उनके ठीक नहीं आए तो ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि उनका नॉलेज उस जॉब के बारे में या उस टास्क के बारे में बहुत कम है या सफिशिएंट नहीं है. तो फिर आपने उनको नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जाना. अब नेक्स्ट लेवल पे अगर आपके पास लेट्स सपोज 100 कैंडिडेट्स जो हैं वो आ गए हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यूज पे, तो कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू पे नॉर्मली 80% ऑफ द डिसीजन इज ऑलरेडी मेड. अगर उसमें आपका फिजिकल एग्जामिनेशन या इस तरह कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर आप नॉर्मली ऑलमोस्ट डिसाइड कर चुके होते हैं. अब एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के बाद आपने देखा कि 160 में से आपके पास 100 लोग जो हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू की तरफ आ गए हैं. इंटरव्यू में जब ये डिसाइड हो जाता है कि अगर आपने उनको रखना है या नहीं रखना, तो देन यू मूव टुवर्ड्स दिस कंडीशनल जॉब ऑफर. और अगर इंटरव्यू में से जो फेल हो जाते हैं उनके साथ आप फिर वही ट्रीटमेंट करते हैं एंड यू इवेंचुअली रिजेक्ट द एप्लीकेंट्स. आप उनको मजीद कंसिडर नहीं करते. अब कंडीशनल जॉब ऑफर जो है इस पे डिपेंड करता है कि क्या वो कैंडिडेट एक्सेप्ट करता है या नहीं करता. और व्हाई डू वी कॉल इट ए कंडीशनल जॉब ऑफर? बिकॉज आप मे बी उसको प्रोबेशन पे रख रहे हो, मे बी आप उसको ट्रायल बेसिस पे रख रहे हो, मे बी आपने उसको सर्टेन कंडीशंस पे रखा हो कि अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी, परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशंस हो सकती हैं. लेट्स सपोज आपको कहते हैं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सारे ठीक निकल आते हैं, डिग्रीज और ये वो कंडीशन हो सकती है. फिर परफॉर्मेंस कितने टाइम के लिए आपने मेंटेन करनी है वो कंडीशन हो सकती है. तो आप किस्म का कंडीशनल जॉब ऑफर देते हैं. और साथ साथ इसमें आप क्या करते हैं कि इस प्रोसेस के बाद यू गो फॉर बैकग्राउंड एग्जामिनेशन इफ रिक्वायर्ड. अब बैकग्राउंड एग्जामिनेशन में क्या आप चेक कर रहे होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द डिग्रीज, द क्वालिफिकेशन, कि अगर कोई फेक डिग्री तो नहीं आ गई उसमें, कोई जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो तो नहीं कैंडिडेट ने दी आपको. फिर एक्सपीरियंस का बहुत इसमें काउंट करता है कि एक्सपीरियंस, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उस बंदे का, उस एम्प्लॉय का, उस एम्प्लॉयर से आप बात कर सकते हैं जिसके पास वो प्रीवियसली काम करता रहा है. अगर वो एम्प्लॉयर कहता है कि यस ही वाज अ वेरी गुड वर्कर और इतने ही पे ले रहा था और सारी चीजें उसने ट्रूथफुली एप्लीकेशन में लिखी हुई हैं, तो देन यू कंटिन्यू विद दैट कि आप कहते हैं कि वो पास हो गया है. अगर यहाँ किसी किस्म की भी आपको ऐसी लीडिंग को चीज मिल रही है जिसमें आप समझते हैं कि वेरिफिकेशन ठीक नहीं है, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में उसने एप्लीकेशन में कुछ ऐसी बात लिखी है विच वाज नॉट ट्रू, तो फिर आप उसको पास नहीं करते. अगेन यू रिजेक्ट दैट कैंडिडेट. और कंडीशनल जॉब ऑफर आपने दिया होता है, कंडीशन उसने फुलफिल नहीं की तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं. बट अगर वो पास कर जाता है तो फिर आप उसको मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन की तरफ लेके जाते हैं. बट इस एग्जामिनेशन का फायदा और जरूरत तब है अगर ये आपकी जॉब के साथ जॉब की रिक्वायरमेंट को मैच करता है. लेट्स सपोज अगर आप आर्मी के टेस्ट के लिए जाते हैं, आर्म फोर्सेस के टेस्ट के लिए किसी भी कंट्री के, तो वहां हो सकता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो, बिकॉज मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है. तो अगर नहीं है, इफ द जॉब डजंट रिक्वायर इट, तो फिर आप ये नहीं करते. बट एज वी टॉक्ड अबाउट इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स कि आप ड्रग टेस्ट कर लेते हैं, आप डिफरेंट जो है एग्जामिनेशन कर लेते हैं उसका, ताकि आपको पता चल जाए कि कैंडिडेट जो है मेडिकली एंड फिजिकली कहाँ एग्जिस्ट करता है और क्या उसकी पोजीशन है. अगर ये भी वो पास कर देता है, एबल टू परफॉर्म एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द जॉब, तो अब उसने सारे प्रेडिक्टर्स को प्रूव किया कि उसने इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू भी सही दे दिया था, फिर उसने एप्लीकेशन को बहुत अच्छे तरीके से फिल किया हुआ था, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में पास हो गया, देन कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू में उसकी असेसमेंट बड़ी अच्छी आई, कंडीशनल जॉब ऑफर लेटर दिया आपने तो उसने एक्सेप्ट कर लिया. प्लस जब आपने बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट किया तो आपको कोई फ्लॉ नहीं नजर आया, पास कर गया. एंड देन फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन इफ दे आर रिक्वायर्ड, ये आपने करवाया तो इसमें भी कोई फ्लॉ नहीं आया, तो देन यू मूव ऑन टुवर्ड्स द परमानेंट जॉब ऑफर. और यहां फाइनली आप उसको यू एक्चुअली मेक दैट पर्सन, दैट कैंडिडेट पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, और फिर अकॉर्डिंगली आप चलते रहते हैं उसमें. नाउ लेट्स डिस्कस ऑल द स्टेप्स इन डिटेल. इनिशियल स्क्रीनिंग. इनिशियल स्क्रीनिंग में आप क्या कर रहे होते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever the candidate is applying for a job,
he doesn't have that much of knowledge about the job description, the job specification. उसने जो न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ा या वेबसाइट पे थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट देखा, उसके अकॉर्डिंग उसने अप्लाई कर दिया. मे बी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सैलरीज नहीं लिखती, तो सैलरी फैक्टर उसको पसंद ना आए. मे बी वर्क आवर्स उसको पसंद ना आए. मे बी उसके डायरेक्टली रिलेटेड जॉब ही नहीं है. तो इनिशियल स्क्रीनिंग में क्या करते हैं आप कि इट इन्वॉल्व स्क्रीनिंग ऑफ इंक्वायरीज एंड स्क्रीनिंग इंटरव्यूज, जिसमें उसकी जो स्मॉल क्वेरीज होती हैं, स्मॉल इंक्वायरीज होती हैं कैंडिडेट की, वो आप फुलफिल करते हो. एंड जॉब डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड अलोंग विद द सैलरी रेंज. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज हर बंदे ने जो डिसाइड करना है टू कंटिन्यू विद अदर स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, वो इन्हीं बेसिस पे करेगा कि इफ ही और शी थिंक्स कि इन फ्यूचर ये जॉब वाकई ही उसके साथ मैच करती है, वाकई ही उसकी नीड्स को फुलफिल करती है, तब वो करेगा. तो इनिशियल इंटरव्यू में, इनिशियल स्क्रीनिंग में आपने क्या किया, उसका स्मॉल इंटरव्यू किया, उसकी क्वेरीज को आंसर किया, और उन क्वेरीज को आंसर करते करते आपने उसको जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि यहाँ जॉब में एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, और साथ आपने उसको रियलिस्टिक जॉब रिव्यू बताया जो हम एंड में जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. साथ आपने उसको सैलरी रेंजेस बता दी, किस रेंज से लेके किस रेंज तक सैलरी जो है, जो पॉसिबल है कि उसको वो दी जाएगी उस जॉब के अंदर. तो यहाँ एम्प्लॉय को या कैंडिडेट को उस वक्त ये फायदा हो जाता है कि वो प्रॉपरली डिसाइड कर लेता है, तो फिर फर्दर मूव करता है. अगर वो यहाँ सेटिस्फाइड नहीं है या उसको कोई और इशू है, तो वो फर्दर मूव नहीं करता, और उसमें ऑर्गेनाइजेशन का टाइम भी जाया नहीं होता, कैंडिडेट का टाइम भी जाया नहीं होता. तो ये इनिशियल स्क्रीनिंग में जो है ना हम करते हैं. देन कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म. अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड टेक्निक्स जो आपको आनी चाहिए. एज एन HR मैनेजर आपको वो फॉर्म बनाना आना चाहिए, एंड एज ए स्टूडेंट एंड एज ए जॉब एप्लीकेंट आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको फिल करना है. जैसे gives the job performance related synopsis of what applicants have been doing, their skills and accomplishment. अब जब आप अप्लाई करते हैं जॉब, तो जो एम्प्लॉयर होता है या HR मैनेजर होता है, उसको आप डायरेक्टली फेस टू फेस नहीं मिल रहे होते. यू आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग थ्रू योर एप्लीकेशन फॉर्म. उस एप्लीकेशन फॉर्म पे किस तरीके से आपकी एजुकेशन लिखी हुई है, किस तरीके से आपकी स्किल्स मेंशन है, कौन कौन सी स्किल्स हैं, क्या वो एक्चुअल जॉब के साथ मैच करती हैं, नहीं करती, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, किस जगह का था, किस लेवल का था, ये सारी चीजें जॉब एप्लीकेशन से आपको मिल जाती हैं. एज एन HR मैनेजर आपको एक स्नैपशॉट मिल जाता है, सिनॉप्सिस मिल जाता है ऑफ द कैंडिडेट्स पोजीशन और द स्टेटस, और द मैच करने के लिए आपको जॉब फिट के लिए आपको हेल्प मिल जाती है कि ये जो कैंडिडेट है जिसकी एप्लीकेशन आप पढ़ रहे हैं, क्या ही और शी इज रेडी टू मीट आवर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सर्टेन जॉब. जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, क्या वो जॉब आपके लिए सही है भी कि नहीं, क्या आपका डिफरेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, क्या आपका जो है वो क्वालिफिकेशन मैच करती है कि नहीं करती. तो एप्लीकेशन फॉर्म से HR मैनेजर को काफी सारी हेल्प मिल जाती है, ताकि आगे मूव करने में इजी हो जाता है. और अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम्स हो तो फिर उसको रिजेक्ट कर देते हैं और मजीद कंसिडर नहीं करते. नाउ जब एप्लीकेशन फॉर्म हो, बना रहे हो और फिल कर रहे हो, तो लीगल कंसिडरेशंस देखनी चाहिए. कौन कौन सी हैं वो? omit items which are not job related, like sex, which is your gender, religion, age, national origin, race, color and disability. ये सारे डेमोग्राफिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, अगर ये जॉब के साथ मैच नहीं कर रहे तो फिर इनको फॉर्म में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन लेने से आपको फायदा नहीं होगा, कंफ्यूजन होगी. तो whenever you are making a form, make sure that if there is something which is not required for the job, some kind of information which is not actually matching or predicting anything about the job, आप उसको omit कर दें, खत्म कर दें. If these things they are not required and they are not part of the job, तो इसको omit कर दें, इसको खत्म कर दें, ताकि जो relevant information है वो आप ज्यादा ज्यादा collect कर सके. और irrelevant information हो सकता है कि laws आपको allow ना कर रहे हो कि relevant information आप लें, तो एक तो ये चीज देखनी पड़ेगी. देन इट इंक्लूड स्टेटमेंट्स गिविंग एम्प्लॉयर द राइट टू डिसमिस एन एम्प्लॉय फॉर
falsifying information. He, as an employer, as an organization, and as an HR manager, should be very careful कि आप फॉर्म में एक ना एक स्टेटमेंट ऐसी रखें जिससे आप ये शो कर रहे हो कि एम्प्लॉय को किसी वक्त भी जो है वो डिसमिस किया जा सकता है अगर वो गलत इंफॉर्मेशन देगा ऑर्गेनाइजेशन को। गलत इंफॉर्मेशन क्या कि अगर वो फॉर्म में कुछ गलत बात, फॉल्स बात लिख रहा है तो फिर उसको किसी टाइम में डिसमिस कर दिया जाएगा, बिकॉज फॉर्म में कई लोग जो है एग्जैजरेट कर देते हैं चीजें लिखने में। तो उस एग्जैजरेशन को खत्म करने के लिए, ट्रूथ पढ़ने के लिए और देखने के लिए आपको ये चाहिए कि आप उसमें एक स्टेटमेंट ऐड कर दें कि इफ अ पर्सन इज लाइंग, झूठ बोल रहा है, तो फिर उसको किसी भी टाइम पे डिसमिस कर दिया जा सकता है या रिजेक्ट कर दिया जा सकता है या मजीद कंसिडर नहीं किया जा सकता। आस्क फॉर परमिशन टू चेक वर्क रेफरेंसेस। जब भी आप फॉर्म बनाएं तो उसमें एक जगह पे एप्लीकेंट के सिग्नेचर्स लें जिसमें क्लियरली आपने ये मेंशन किया हो कि जो रेफरेंसेस उसने फॉर्म में मेंशन किए हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन चेक करेगी। लेट्स सपोज एक्स एम्प्लॉयर है तो एक्स एम्प्लॉयर को फोन करके आप पूछेंगे या ईमेल लिखेंगे या लेटर लिखेंगे या उसको जाके इंटरव्यू कर लेंगे या उसको बुला लेंगे। ये सारी आपकी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की टैक्टिक्स हैं, बट बिफोर दैट यू विल हैव टू टेक दी कंसेंट ऑफ योर एप्लीकेंट, और वो जरूर लें उस फॉर्म में, एक चीज जो है वो उसको ऐड करें। देन टिपिकली इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट एट विल स्टेटमेंट, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ी थी कि ऐसी स्टेटमेंट जरूर ऐड करें कि द एम्प्लॉयर कैन फायर और dismiss any person at any time without telling the reason। ये आपको जो डॉक्ट्राइन है ये उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। फ्यूचर में अगर आपको एम्प्लॉय नहीं चाहिए या परफॉर्म ठीक नहीं कर रहा एंड यू वांट टू आस्क हिम टू गो फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपके पास ये ऑलरेडी अवेलेबल हो और वो आपको सू ना कर सके। नाउ वेटेड एप्लीकेशन फॉर्म्स क्या होते हैं? मेनली वेटेड एप्लीकेशन फॉर्म्स का जो लिटरल मीनिंग हम लेते हैं वो ये है कि इट शुड कंटेन ऑल द रेलेवेंट क्वेश्चंस इन अ बैलेंस्ड फॉर्म। किस तरीके से? इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर वैलिडेटेड अगेंस्ट परफॉर्मेंस एंड टर्नओवर मेजर्स एंड गिवन अप्रोप्रिएट वेट। आपने इस तरीके से फॉर्म को डिवाइड करना है कि जिसमें सेक्शंस हों, सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, ये सारे सेक्शंस जॉब से रिलेटेड हों एक बात, और इनमें सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने पूछे हों ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन आए। वेटेड होना चाहिए, मतलब ये है कि किसी एक बारे में आप इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ले रहे हैं जो अननेसेसरी है, और जो एक नेसेसरी चीज है उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन ली नहीं या बहुत कम ली है, तो उसमें आपने वेटेड रखना है, बैलेंस रखना है। Then data must be collected for each job to determine how well a particular item, for example years of schooling, tenure on the last job, predicts success on target job। जिस जॉब के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवा रहे हैं, it should contain sufficient number of items which are going to actually predict for your future कि क्या ये बंदा जॉब के लिए फिट है कि नहीं है। जैसे हमने कहा कि मैचिंग पीपल विद जॉब्स, अब ये क्या उस जॉब के लिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो डिफरेंट आइटम्स आप बनाए दें। कौन कौन सी? ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये 2 एग्जांपल दी हुई हैं, यू कैन हैव एज मेनी आइटम्स एज यू वांट। एंड देन टेन्योर ऑन द लास्ट जॉब, कि कितनी देर काम किया है। लेट्स सपोज अगर एक बंदा जो है उसका एक्सपीरियंस तो बहुत है, बट आफ्टर एवरी 2 months he or she is leaving the organization and joining the other organization, तो फिर आपको थोड़ा सा इंडिकेशन हो जाती है कि इसका अपना पर्सनल जॉब चेंज, जॉब स्विच का रेट बहुत हाई है, तो आप उसको उस तरीके से कंसिडर करते हैं। तो इसलिए डिफरेंट इसमें आइटम ऐड करें, यूज करें उनको, और वो अच्छे तरीके से आपको प्रोडिक्ट करके बताएंगी कि क्या टारगेट जॉब के लिए ये कैंडिडेट हमारे लिए फिट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। देन कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, अगेन सम इश्यूज। सक्सेसफुल एप्लीकेशन के साथ आप क्या करते हैं?
Information collected on application forms can be highly predictive of successful job performance. अगर आपने सही तरीके से फॉर्म को एनालिसिस किया, फॉर्म को अच्छे तरीके से रीड किया और उसको मैच किया है जॉब्स के साथ, जो आपकी टारगेट जॉब है, जिस जॉब के लिए आपने उस कैंडिडेट को हायर करना है, तो फिर आपको बड़ा अच्छा प्रोडिक्ट करके वो बता सकता है फॉर्म कि क्या ये कैंडिडेट अच्छा है, जॉब के साथ फिट है, या क्या ये कैंडिडेट ठीक तरीके से काम नहीं कर सकेगा। तो ये बहुत अच्छा एक प्रोडिक्टर है। तो एक तो ये आपको बता देता, देन फॉर्म्स मस्ट बी वैलिडेटेड एंड कंटिन्यूसली रिव्यूड एंड अपडेटेड, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक दफा फॉर्म बना लेती हैं, सारी जिंदगी वही चलाती रहती हैं। Because of the change in environment, because of the change in technology, because of the change in so many things, you need to review your form every 6 months, every 3 months, every year. But किसी ना किसी तरीके से आपको इसको रिव्यू भी करना चाहिए एंड अपडेट भी करते रहना चाहिए। Let's suppose आज से 15 साल पहले people did not used to have their own email addresses. तो फॉर्म में ईमेल का कोई हमने बॉक्स ही नहीं बनाया हुआ था। But now we must ask that person's email address because उसकी ईमेल के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। टेलीफोन, सेल फोन जो थे वो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले शायद किसी हर बंदे के पास नहीं होते थे, तो अब वो भी हमें डाटा लेना पड़ता है। देन डाटा शुड बी वेरीफाइड थ्रू बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, और ये डाटा जो है इसकी वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है और उसको आप बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो है वेरीफाई करें। नाउ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट्स, अब जो एक और प्रेडिक्टर हमारे पास बहुत अच्छा प्रेडिक्टर जो है वो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट है, जिसके बारे में कहा जाता है कि एस्टिमेट्स से 60% ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस यूज सम टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट्स। 60% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो सिलेक्ट कर रही होती हैं कैंडिडेट को जिस वक्त रिक्रूटमेंट के बाद, वो टेस्ट किसी ना किसी फॉर्म में जरूर यूज कर रही है। दैट मीन्स इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन इसको अप्लाई कर रही है और हर ऑर्गेनाइजेशन इसको एज अ अच्छा प्रेडिक्टर, गुड प्रेडिक्टर लेके चल रही है। अब इसमें कौन कौन से टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं? वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप MCQ टेस्ट दे सकते हैं उनको, जिसमें आप जॉब रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें। दूसरे कौन से अवेलेबल है? परफॉर्मेंस स्टिमुलेशन टेस्ट, जिसमें आप ये देखते हैं कि क्या इस कैंडिडेट की परफॉर्मेंस ऑन द जॉब बेहतर रहेगी या नहीं रहेगी। बिकॉज यहां हमारे पास मेन इशू क्या है कि अभी वी हैव नॉट सिलेक्टेड दैट पर्सन फॉर दैट जॉब। इवन सिलेक्ट करने के बाद भी वो जब जॉब पे जाएगा, परफॉर्म करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ट्रेन करेंगे आप उसको, फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा कैंडिडेट है कि नहीं है। उस सारी चीज को प्रोडिक्ट करने के लिए जरूरी है कि आपके प्रोडिक्टर्स बहुत अच्छे हों और बड़े रेलेवेंट हों और उनके सेंस बनाते हों। लेट सपोज अगर आपने चेक करना है कि किसी को उर्दू लैंग्वेज कितनी अच्छी है, तो आप उससे पर्शियन में क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप उससे इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं करेंगे, बल्कि आप उर्दू में क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि उर्दू कितनी अच्छी है। इसी तरह उस जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस करने चाहिए जो आपको प्रॉपर प्रेडिक्ट करके बताएं कि फ्यूचर में इस बंदे का नॉलेज इतना है कि ये उस जॉब के साथ मैच कर सकता है या नहीं कर सकता। देन परफॉर्मेंस स्टिमुलेशन टेस्ट क्या करते हैं? इट रिक्वायर्स द एप्लीकेशन टू एंगेज इन स्पेसिफिक जॉब बिहेवियर्स नेसेसरी फॉर डूइंग द जॉब सक्सेसफुली। आप इस तरीके का उसको सिमुलेशन टेस्ट दे देते हैं जिससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या ये ठीक तरीके से अपनी जॉब परफॉर्म कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन पायलट। पायलट क्या करता है? उसने जहाज जो है उसको ड्राइव करना होता है, उसको फ्लाई करना होता है। अब उसके लिए आप एक अगर सिमुलेशन बना देते हैं, एक कंप्यूटराइज्ड टेस्ट बना देते हैं या एक कंप्यूटराइज्ड असेसमेंट सेंटर बना देते हैं जिसमें सारी की सारी वही कंडीशंस, वही कॉन्टेक्स्ट रखते हैं कि जैसे आप उसको पायलट की ट्रेनिंग दे रहे हैं या पायलट का उसने जहाज को फ्लाई करना है, तो आप उससे एक टेस्ट लेते हैं। एक्चुअली आप उससे टेस्ट ले रहे जो हैं वो सिमुलेशन का ले रहे हैं, बिकॉज आपने कंडीशंस ऐसी बना दी कि जहां उसको जहाज को फ्लाई करना पड़ेगा। अब वो जहाज को जब फ्लाई करने लगेगा और उसमें ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम्स आई, तो कंप्यूटर आपको
ये प्रेडिक्ट करके बता सकता है कि कितनी इसकी फ्लाइंग में बेहतरी है, बुराई है या क्या है, ताकि आप उससे प्रेडिक्ट कर सकेंगे क्या ये एक्चुअल जहाज जो है, एक्चुअल एरोप्लेन को सही तरह फ्लाई कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। तो सिमुलेशन टेस्ट आपको इस तरह का प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं। देन वर्क सैम्पलिंग, बहुत सारे हमारे ऐसे जो है वो टास्क हैं, ऐसी जॉब्स हैं जिनके लिए वर्क सैम्पलिंग करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज अ जॉब ऑफ अ कुक। अब कुकिंग वर्बली बताने से कि ये इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, ये रेसिपी है, मे बी उसने रटा लगा लिया हो, मे बी उसने बाय हार्ट याद करके, और उसको बड़ा अच्छे तरीके से हर चीज़ पता हो कि कितने इंग्रेडिएंट्स कब डालने हैं, कितने इंग्रेडिएंट्स कब डालने हैं, कितनी आग होनी चाहिए, कितना जो है कितनी देर उसको पकना चाहिए, कितना नहीं। बट एक्चुअली कुक का आप तभी पता चला सकते हैं जब आप उससे खाना बनवाएंगे और फिर वो खाने का टेस्ट कैसा आएगा। तो ये वर्बल टेस्ट से आप मेजर नहीं कर सकते कि कितना अच्छा कुक है। इसी तरह बार्बर की ले लें एग्जाम्पल, कि अच्छा बार्बर बातों से आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत में भी 20%, बट असल में जब वो वर्क सैम्पलिंग करेगा, एग्जैक्टली वही काम करके दिखाएगा आपको, तो तब आपको सही अंदाजा होगा, सही प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप कि क्या वाकई ही ये उस जॉब पे अपनी फिट होगा जिसके लिए आप इसको हायर करें या नहीं होगा। तो जॉब एनालिसिस इज यूज्ड टू डेवलप अ मिनिएचर रेप्लिका ऑफ द जॉब इन विच एन एप्लीकेशन डेमोन्स्ट्रेट्स हिज और हर स्किल्स। वो एप्लीकेंट जो है उसकी स्किल्स को आप यूज करवाएं और उससे वर्क सैम्पलिंग कराएं। लेट सपोज आपने उससे स्टिचिंग का काम करवाना है, उसकी जॉब जो है एज अ स्टिचर आएगी। अब वो स्टिच करना जो है वो आप उसको वर्क सैम्पलिंग उससे करवा लें, एक उसको मशीन दें, कपड़ा दें और वो उसको सी के देखे और आपके सामने उसको काम को करके दिखाए, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कितना अच्छा जो है ये स्टिच कर सकता है या नहीं कर सकता। तो वर्क सैम्पलिंग जो है ये बहुत अच्छा टूल हो सकता है जो आपको प्रेडिक्ट करके बता सकता है कि फ्यूचर में जॉब का और इस पर्सन का एग्जैक्ट फिट क्या है, मैच क्या है, कितना लेवल ऑफ मैच है बिटवीन द जॉब एंड द कैंडिडेट। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कंटिन्यू हो रहे हैं, असेसमेंट सेंटर्स बने होते हैं जिसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ टेस्ट एंड एक्सरसाइजेज इंक्लूडिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप सिमुलेशन टेस्ट is used to assess managerial potential or other complex sets of skills। आप असेसमेंट सेंटर्स बनाए होते हैं जिन सेंटर्स में आपके पास एग्जैक्ट वही काम जो उसने जॉब पे परफॉर्म करना है उसकी सेटिंग्स हुई होती हैं। अगर आप उसको कैंडिडेट को वहाँ उससे टेस्ट लेते हैं असेसमेंट सेंटर्स में, तो वो साथ साथ आप ये असेसमेंट्स कर रहे होते हैं कि क्या ये जॉब के लिए ठीक है कैंडिडेट या ठीक नहीं है। तो इससे आपको काफी हेल्प मिल जाती है। जो असल में क्या कर रहा होता है वो आपको स्किल्स जो है, अपना स्किल सेट उसकी एप्लीकेशन करके दिखा रहा होता है, और जैसे ही वो अप्लाई कर रहा होता है तो आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि क्या ये वाकई जॉब पे भी सही परफॉर्म कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। अगर वो बहुत सारी मिस्टेक्स बना रहा है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज उसको सही तरह स्किल को अप्लाई करना नहीं आता। अब इसी में जो टेस्टिंग इन ग्लोबल अरीना एक टॉपिक उसको देखते हैं कि क्या है कि whenever you are doing these things for international recruitment and selection, then you need to see into a few things। कौन सी हैं? Selection practices must be adapted to culture and regulations of the host country। जिस कंट्री में उस शख्स ने काम करना है उस कंट्री का कल्चर, उसकी वैल्यूज, उसकी नॉर्म्स और उसकी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को देख के फिर डेवलप करें। कि लेट्स सपोज अगर आपने टेस्ट लेना है, जापान में अगर टेस्ट लेना है और जापानीज लोग वो टेस्ट दे रहे हैं, तो यू आर नॉट गोइंग टू आस्क देम क्वेश्चंस इन इंग्लिश और इन उर्दू और इन मे बी पर्शियन, यू आर गोइंग टू आस्क देम क्वेश्चंस इन देयर ओन लैंग्वेज। देन दे आर गोइंग टू टेल यू, देन दोज टेस्ट्स will be valid and reliable and they are going to tell you if the person is suitable for the job or not। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि होस्ट कंट्री को देख के, होस्ट कंट्री मीन्स कि जहां उसने काम करना है, यहां हम इस सेंस में ले रहे हैं कि जिस कंट्री में वो उसकी एम्प्लॉयमेंट होगी, जिस कंट्री में उसने परफॉर्म करना है, वहां के कल्चर को, वहां के रूल्स को, वहां के रेगुलेशंस को देख के देन यू डिजाइन दीज टेस्ट्स, अदरवाइज उनमें प्रॉब्लम आ जाएगा।
Now, comprehensive interviews. The most widely used tool for selection process is the interview process. Interview involve a face-to-face meeting with the candidate to probe areas not addressed by the applicant from or the test. Application form में बहुत सारी information ऐसी होती है which you cannot assess. Personality का नहीं पता चलता, communication skills का नहीं पता चलता, तो बहुत सारी ऐसी problems आ सकती हैं. तो then you use tests. टेस्ट में आपको इंटेलिजेंस का पता चल गया, बट स्टिल आपको वर्बल कम्युनिकेशन का नहीं पता चला, स्टिल आपको पर्सनालिटी का नहीं पता चला, स्टिल आपको बहुत सारी जो है अभी हिडन इंफॉर्मेशन है. तो कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यूज जो होते हैं या इंटरव्यूज जिनको हम सिंपली कहते हैं, दे आर अ फेस टू फेस टॉक बिटवीन द एम्प्लॉय और द कैंडिडेट एंड द एम्प्लॉयर. तो एम्प्लॉयर अब उसमें असेस कर लेता है कि क्या ये कैंडिडेट, जिस तरह कुछ जॉब्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हों. अब आप उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स असेस कर लेते हो, आप उसको प्रॉब्लम कोई दे देते हो जिसको वो सॉल्व करके आपको बताता है. तो इंटरव्यू मेथड्स जो हैं वो सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो टूल है फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस वो इंटरव्यू ही है. दे आर अ यूनिवर्सल सिलेक्शन टूल. एज आई टोल्ड यू कि ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरव्यूज को यूज करती है एज देयर प्रेडिक्टर फॉर ऑलमोस्ट ऑल द जॉब्स. एंड स्पेशली जहां बिहेवियर्स एंड कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, वहां तो इंटरव्यू बहुत एसेंशियल हो जाते हैं. विदाउट द इंटरव्यू यू कैन नॉट हायर समबडी. तो ये इंटरव्यू जो है इनके बारे में मजीद देखते हैं. अब इंटरव्यू की जो इफेक्टिवनेस है वो कितनी है और किन किन चीजों से डिस्टॉर्ट होती है. तो इंटरव्यूज आर द मोस्ट वाइडली यूज सिलेक्शन टूल. ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू, ऑफन आर एक्सपेंसिव, इनएफिशिएंट and not job related. Now these are the problems. Expensive, it is fine, because if you can afford that kind of expense, it is fine, but they are inefficient, and the reason, most of the reasons are there, but one of the reasons is that they are not job related. You start giving an interview, or employer जो है, instead of asking you for your job related questions, he might ask you some personal questions. They're not even related to the job. और उसमें फिर बहुत सारी बाइसेस आ सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसमें हायरिंग प्रोसेस जो है उसमें एक डिस्टॉर्ट हो सकता है, जिसमें प्रॉब्लम आ सकता है. तो पॉसिबली जो बाइसेस हैं वो एम्प्लॉयर की तरफ से ज्यादातर आएंगे, बिकॉज ही इज देयर टू सिलेक्ट दैट कैंडिडेट. और उसमें कौन कौन से एरर्स हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. बाइसेस विद डिसीजन बेस्ड ऑन इंटरव्यू इंक्लूड प्रायर नॉलेज अबाउट द एप्लीकेंट. अगर वो पहले से उसको जानता होगा किसी अच्छी सेंस में या बुरी सेंस में, तो वो उसके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करेगा. अगर वो उसको अच्छी टर्म्स में जानता है तो फिर वो उसको सिलेक्ट करना ज्यादा से ज्यादा चाहेगा और उसकी बाकी चीजें इग्नोर कर देगा जो उसमें बुरी चीजें हैं या जो उसमें मैच नहीं करती जॉब के साथ. बट अगर उस कैंडिडेट को पहले से अच्छा नहीं समझता बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजंस, तो फिर वो उस कैंडिडेट को डिस्करेज करता रहेगा. जिसमें एक हम बड़ी फेमस फ्रेज यूज करते हैं कि मैनेजर्स मेक देयर डिसीजन इन द फर्स्ट 20 seconds ऑफ द इंटरव्यू एंड दे स्पेंड द रेस्ट ऑफ द टाइम जस्टिफाइंग देयर स्टेटमेंट्स एंड जस्टिफाइंग देयर परसेप्शंस एंड डिसीजंस. तो आप उसमें जज कर लेते हैं, किसी और रीजंस की वजह से बाइसेस आ जाती हैं, और फिर आप उसको जस्टिफाई करते रहते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन या मेरी परसेप्शन इस एम्प्लॉय के बारे में ठीक है. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो आती हैं उनको उनमें इंप्रेशन मैनेजमेंट का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर जो कैंडिडेट है उसने अपना इंप्रेशन बहुत अच्छा इंटरव्यूज पे है, उसका अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, but job related factor are the most important things which you should assess in the interviews. but कुछ लोग impression management में बहुत अच्छे होते हैं कि वो अपना impression फौरन बहुत अच्छा बना लेते हैं. maybe sometimes उनके पास hobbies ऐसी होती हैं जो employer की hobby के साथ मैच कर रही होती है, sometimes और बहुत सारी ऐसी similarities आ सकती हैं. तो impression management में क्या है, applicants desire to project the right image may skew the interview results. एप्लीकेंट जो होता है उसने तो कोशिश यही करनी होती है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा इंप्रेशन मेरा पड़े एम्प्लॉयर्स पे, इंटरव्यूअर्स पे. अब उसमें अगर इंटरव्यूअर्स
उसको प्रॉपर्ली जज नहीं कर सकते और इम्प्रेशन मैनेजमेंट की उसमें आ जाते हैं लपेट में, तो फिर मसला है। नाउ इंटरव्यूअर्स हैव शॉर्ट एंड इनएक्यूरेट मेमोरीज। कई दफ़ा जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, व्हेनेवर दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, तो उनको थोड़ी देर में याद नहीं रहता, और बिकॉज देर आर लॉट मेनी कैंडिडेट्स कमिंग वन आफ्टर द अदर देन वन आफ्टर द अदर, तो उसमें ये भी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आप ऑर्डर के एरर में भी आ जाते हैं कि किसी ने अगर अच्छा आंसर दिया है तो आपने वो रिकॉर्ड प्रॉपर्ली नहीं किया और ऐसा रिकॉर्ड कर लिया जो किसी ने आंसर ठीक नहीं दिया, तो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। उसका अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि नोट टेकिंग एंड वीडियो टेपिंग में हेल्प, कि जैसे ही कैंडिडेट आए आप उसकी जो भी आंसर्स हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, आप उसकी नोट टेकिंग करें। आपके पास अलहदा हर कैंडिडेट के लिए शीट हो। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ शीट है और आपने उस पे कुछ एक सर्कल बना लिया कि आपने किस तरीके से जाना है इस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 वाज गुड, क्वेश्चन नंबर 2 वाज नॉट वेरी गुड, इसको हम गुड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 वाज बैड एंड क्वेश्चन नंबर 4 वाज एक्सीलेंट। तो अगर आप इस तरह के नोट्स भी इवन ले लेते हैं तो आपको बाद में रैंक करना इजी हो जाता है। एंड सेपरेट फॉर्म शुड बी यूज फॉर अ सेपरेट कैंडिडेट, बिकॉज हर किसी का आप देन एंड में रिजल्ट कैलकुलेट करें और जो फेयर रिजल्ट्स आते हैं विदाउट द बाइसेस वो आ सकते हैं, फिर आपको फायदा होगा उससे। वीडियो टेपिंग कर सकते हैं कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर लें और बाद में उसको देखें कि किस कैंडिडेट ने क्या जवाब दिया है और अकॉर्डिंगली आप जो है अपना डिसीजन बनाएं। नाउ इंटरव्यूज में दो टाइप्स आगे आ जाती हैं, जिसको हम एक को स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज कहते हैं और दूसरे को अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज कहते हैं। इनमें मेन डिफरेंस क्या है? सबसे पहले इसका डिफरेंस समझते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज ऐसे इंटरव्यूज हैं जिनमें आप हर कैंडिडेट से सेम क्वेश्चंस करते हैं एंड सेम सीक्वेंस रखते हैं। लेट्स सपोज आपने एक कैंडिडेट से क्वेश्चंस किए, व्हाट इज योर नेम, फिर आपने कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, फिर आपने उसे कहा कि वर्क एक्सपीरियंस क्या था आपका, उसके बारे में क्वेश्चंस कर लिया, और फिर इस तरह आपने 1 2 3 एंड मीनवाइल और क्वेश्चंस भी करते रहे। बट नेक्स्ट कैंडिडेट जब आया तो उससे भी आपने सेम सीक्वेंस और सेम क्वेश्चंस किए और उसके आंसर्स रिकॉर्ड कर लिए। अगर आपका सीक्वेंस एंड questions and nature of question is the same, then you are going for a structured interview. अगर आपका सीक्वेंस जो है वो डिफरेंट हो रहा है, then you are going for unstructured interviews, जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन लीड कर जाता है। मे बी आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिफरेंट सीक्वेंस से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। So structured interviews use fixed questions designed to assess specific job related attributes. ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपने फिक्स क्वेश्चंस पूछे होते हैं, सीक्वेंस सेम होता है, क्वेश्चन सेम होते हैं और वो जॉब रिलेटेड होते हैं। तो यूजुअली आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज ही यूज करते हैं बिकॉज दे आर अ बेटर प्रेडिक्टर देन दी अनस्ट्रक्चर्ड वंस। दे आर मोर रिलायबल एंड वैलिड देन अनस्ट्रक्चर्ड वंस। ऑब्वियसली अगर आप हर एम्प्लॉय से, हर कैंडिडेट से डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे तो आपके पास असेसमेंट के लिए कोई सही क्राइटेरिया नहीं होगा। अगर आप सेम क्वेश्चंस करेंगे देन यू आर गोइंग टू इन द एंड विल बी एबल टू इवैल्यूएट द डिफरेंट आंसर्स फॉर द सेम क्वेश्चंस, तो उससे आपको असेस करना थोड़ा इजी हो जाता है। देन बेस्ट फॉर डिटर्मिनिंग ऑर्गेनाइजेशनल फिट, बिकॉज समटाइम्स आपको जॉब फिट नहीं देखना होता, आपको ऑर्गेनाइजेशनल फिट भी देखना होता है कि क्या ये जो एप्लीकेंट है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्म्स, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ भी चल सकता है या नहीं चल सकता। तो ऑर्गेनाइजेशनल फिट भी आपने उसके साथ ही मेंटेन करना होता है। मोटिवेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, मोटिवेशन लेवल आप उसका चेक कर लेते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस के थ्रू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के थ्रू। देन उसका स्किल लेवल चेक कर लेते हैं। उसमें आप हो सकता है कि आपने एक प्रॉब्लम डिफाइन की हो जो आप उसको उसके साथ शेयर करते हैं और वो आपको उस पर सोल्यूशंस देता है डिफरेंट। तो
आप बाद में ये वैल्यूएट कर सकते हैं कि कौन सा कैंडिडेट किस सिचुएशन में कितना अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा था। तो वो आपको एक प्रेडिक्ट करके बता सकता है कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में या सोल्यूशन मेकिंग में कितना अच्छा हो सकता है। स्पेशली यूजफुल फॉर हाई टर्नओवर जॉब्स एंड लेस रूटीन वंस। जिन जॉब्स पे बहुत ज्यादा टर्नओवर होती है, लोग बहुत छोड़ के जाते हैं और फिर डिफरेंट लोग उनको रिप्लेस कर रहे होते हैं, उन जॉब्स के लिए द रिसर्च सेज कि बहुत यूजफुल टूल है हमारे लिए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो हमने स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड में डिफरेंस जो है वो भी कर लिया कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में आप सेम क्वेश्चन पूछते हो विद द सेम सीक्वेंस फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉइज, फ्रॉम ऑल द कैंडिडेट्स। इन एन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आप डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हो, सीक्वेंस भी सेम नहीं होता। मे बी यू आर आस्किंग सम लीडिंग क्वेश्चंस, कि आपने एक क्वेश्चन किया, उससे कोई बात किसी और तरफ निकल गई, फिर उससे कोई और तरफ बात निकल गई। दोज काइंड ऑफ इंटरव्यूज आर कॉल्ड द अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। नाउ बिहेवियरल इंटरव्यूज, they are another type of interviews in which you are not only checking the quality and or maybe the quantity of the answers, but you are also checking how the other person is behaving while giving the answers. Like किस चीज पे उसका emphasis ज्यादा है। अगर वो किसी चीज को yes से आंसर करता है तो उस yes में emphasize कितना कर रहा है, नो में आंसर करता है तो कितना एम्फसाइज कर रहा है। ये छोटी मोटी एग्जांपल्स है बिहेवियरल इंटरव्यूज की। एंड इसको देखते हैं, कैंडिडेट्स आर ऑब्जर्व्ड नॉट ओनली फॉर व्हाट दे से बट हाउ दे बिहेव व्हाइल सेइंग इट। जैसे ही वो बात कर रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, प्लस कहाँ वो ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं, कहाँ वो ज्यादा एम्फसाइज नहीं कर रहे हैं, ये भी आपने देखना होता है। इसके लिए पॉसिबल ये भी है कि अगर आपके पास कैंडिडेट्स हैं ज्यादा तो यू कैन आस्क देम टू डू अ रोल प्लेइंग। आप उनको एक रोल दे देते हैं और आप एक्शन के थ्रू और वर्बली आप उनसे पूछ लेते हैं कि इस रोल में आप हो और ये प्रॉब्लम में हो तो किस तरह सॉल्व करेंगे। तो उससे आपको पता चल जाता है कि इंसान किस तरह बिहेव कर रहा है सर्टन सिचुएशन में। तो उनको हम बिहेवियरल इंटरव्यूज कहते हैं, जिससे हमें साइकोलॉजिकल एंड बहुत सारे दूसरे इश्यूज जो हैं कैंडिडेट के पता चल जाते हैं, जो असेस करने में हमें आसानी होती है कि क्या ये जॉब के लिए फिट होंगे या नहीं होंगे। तो ये बिहेवियरल इंटरव्यूज जो है इनके लिए हम बिहेवियर के लिए करते हैं कि बिहेवियर किस तरह का लोगों का। देन रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड बिफोर यू गो फॉर अ सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें मेनली हम क्या कर रहे हैं कि वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू टेल द एम्प्लॉई और द कैंडिडेट कि इस जॉब की अच्छी बातें क्या हैं और बुरी बातें क्या हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बुरी बातें साथ अटैच्ड क्या हैं, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ज्यादातर बुरी बातों को हाइड कर लेती हैं। उसमें जो जॉब्स के साथ स्ट्रेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जो प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होती हैं, वो हाइड कर लेते हैं बिकॉज दे वांट टू कीप समबडी गुड, सम गुड कैंडिडेट्स। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि शुरू में जब उन कैंडिडेट्स को आप रियलिस्टिकली नहीं बताते कि जॉब है क्या, जो अभी हमारा टॉपिक भी है रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू, अगर आप उनको रियलिस्टिकली नहीं बताते कि इस जॉब में क्या होगा आपके साथ एक्चुअली, तो फिर कैंडिडेट का टर्नओवर रेशो बहुत ज्यादा हो सकता है। लेट्स सपोज अगर आपको एक जॉब का पता चलता है जो सैलरी आपको पे कर रही हो लेट्स सपोज 10 लाख और बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सारे हों उसमें, और वर्किंग आवर्स भी आपके 8 आवर्स हों विच आर वेरी गुड, लेकिन ये सारी चीजें आपको पता चले तो आप जॉब ऑफर फॉरन एक्सेप्ट कर लेंगे। बट इसके साथ अगर अटैच्ड हो कि आपको काम करना पड़ेगा 47 डिग्री सेल्सियस पे, तो फिर ये प्रॉब्लम आ गया। देन यू विल make a choice accordingly. If you can tolerate that 47 degree Celsius, then you will be able to take that kind of job. Otherwise, आप इसको reject कर देंगे। तो organizations गलत क्या करती हैं कि वो bad things जो हैं उनको hide करके रखती हैं और जो good points हैं उनको बता देती हैं ताकि candidate attract हो जाए उस organization की तरफ और बेहतर से बेहतर candidates उनको join कर लें। But issue क्या होता है कि when it comes to a natural job setting, तो जॉब सेटिंग में तो 47 डिग्री सेल्सियस भी इंक्लूडेड था, बट इट वाज केप्ट हिडन।
by the organization, by the employer, by the HR department or by the interviewer. अब जब वो एक्चुअली जॉब करने आता है, ये चीजें तो उसको अट्रैक्ट करके ले आई, बट 47 डिग्री सेल्सियस विच इज अ बैड थिंग अबाउट दैट जॉब, ये नहीं उसको बताई गई, तो अब वो क्विट कर देगा। अब वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्यादा से ज्यादा काम नहीं कर सकता, बिकॉज उसको पहले जो बैड फैक्टर ऑफ दैट जॉब है उसको पता नहीं था, अब उसको पता चल गया, अब वो छोड़ के चला जाएगा। तो आपका जो पूरा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस है, जो जितनी भी कॉस्ट आई है उस पर, जितना भी एफर्ट लगा है, इट विल ऑल बी अ वेस्ट। इसलिए बेहतर ये है कि आप रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू करें और अपने कैंडिडेट के साथ शेयर करें, ताकि उसको जॉब सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर वो सिलेक्ट कर ले तो फिर बाद में छोड़ के ना जाए, बिकॉज यू ऑलरेडी टोल्ड दैट कैंडिडेट एवरीथिंग, अच्छी बुरी बातें दोनों बता दी हैं। नाउ RJPs presents unfavorable as well as favorable information about the job to the applicant. आपने फेवरेबल बातें भी बता दी और अनफेवरेबल बातें भी एप्लीकेंट को बता दी। इट मे इंक्लूड ब्रोशर्स, फिल्म्स, टूर्स, वर्क सैम्पलिंग और वर्बल स्टेटमेंट्स दैट रियलिस्टिकली पोर्ट्रे द जॉब। रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू करने के लिए आप कर क्या कह सकते हैं, आप ब्रोशर्स बनवा लें जिसपे आपने गुड एंड बैड थिंग्स को डिवाइड किया हो, या ऊपर नीचे करके गुड एंड बैड फैक्टर्स को लिखा हो, ताकि वो इजीली उसको पढ़ के समझ आए। फिल्म्स, जहां कॉन्टेक्स्ट दिखाने की जरूरत है कि किस कॉन्टेक्स्ट में उसको काम करना होगा, कितना स्ट्रेस लेवल होगा, कि वहां आप उसकी वीडियो फिल्म्स दिखा दें जो उस एक्चुअली उस जॉब की परफॉर्म करते वक्त दूसरे लोगों की हो, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि उसने इस तरीके से एटलीस्ट वो इमेजिन कर सके कि उसने किस फॉर्म में जाकर काम करना है। देन टूर्स, जिस जगह पे जिन मशीन्स के साथ उसने काम करना है वहां का टूर करवा दें। वर्क सैम्पलिंग, उससे वो काम करवा के देख लें कि क्या वो सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्या वो कंफर्टेबल है या नहीं कंफर्टेबल। तो वर्क सैम्पलिंग बहुत अच्छा तरीका है कि जिससे आप रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू कर सकते हो, बिकॉज इसमें कॉन्टेक्स्ट भी इन्वॉल्व होता है, कंटेंट भी इन्वॉल्व होता है, आपके जो एक्शंस हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, आपका एनवायरनमेंट भी इन्वॉल्व होता है। तो वर्क सैम्पलिंग कैन बी वन ऑफ द वेरी गुड टूल्स फॉर डूइंग द रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू। और वर्बल स्टेटमेंट्स, यहां आप उसको लेक्चर की फॉर्म में या वर्बली बता दें कि इसमें ये अच्छाइयां और ये बुराइयां इस जॉब में हैं। RJPs रिड्यूस टर्नओवर विदाउट लोअरिंग द एक्सेप्टेंस रेट। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर एक कैंडिडेट RJP समझने के बाद, रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू देखने के बाद, समझने के बाद भी एक्सेप्ट करेगा जॉब को, देन ही और शी इज गोइंग टू स्टे विद द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज उसको सारी अच्छी बुरी बातें जो है ऑलरेडी पता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है जो आपको टर्नओवर रेट को एटलीस्ट कम कर सकता है। अदरवाइज अगर चीजें ठीक तरीके से नहीं बताई होंगी तो फिर बहुत जल्दी लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते रहेंगे। तो आपका, जैसे मैंने कहा कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का सारा प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का सारा प्रोसेस वेस्ट हो जाएगा, वो यूजफुल नहीं रहेगा। तो रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू करना जो है वो HR डिपार्टमेंट का और ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा फर्ज है। नाउ द समरी, आज का लेक्चर ऑलमोस्ट हमारा जो है वो कुछ स्टेप्स हमने सिलेक्शन प्रोसेस के मेनली डिस्कस किए, और उससे पहले हमने जो इसकी डेफिनेशन डिस्कस की, और फिर इनिशियल स्क्रीनिंग हमने डिस्कस किया, कंप्लीशन ऑफ फॉर्म, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यूज, यहाँ तक हमने जो है इसको डिस्कस भी किया, देखा भी, और साथ हमने एंड में रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू के बारे में बात की। तो बेसिकली आज के लेक्चर में जब हमने डिफाइन किया फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन प्रोसेस को, तो हमने कहा कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग ऑफ दैट पूल ऑफ कैंडिडेट which you actually collected in the recruitment process to find the best ones, to select the best ones. अब वो best ones जो select करने हैं उनके लिए क्या क्या आपको करना पड़ता है। For that you have certain predictors, you have certain steps, you have certain tests जो आपको predict करते हैं फ्यूचर के लिए कि क्या ये कैंडिडेट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्या इस जॉब के साथ वो चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। जिसमें हमने कहा कि फर्स्ट स्टेप हमारा होता है इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू, स्मॉल इंटरव्यूज, जिसमें आप कैंडिडेट की जो क्वेरीज होती हैं, कैंडिडेट के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको प्रॉपर्ली आंसर करते हैं, और ताकि अगर उसने फर्दर मूव करना है जॉब के साथ, उस एप्लीकेशन के साथ, तो वो मूव करे, अदरवाइज ना करे। समटाइम सैलरी रेंज आप बता देते हैं उसको,
जो ऑलरेडी हो सकता है न्यूज़पेपर में ऐड में उसने ना देखी हो सकता है उसने वेबसाइट पे ना देखी हो सकता है उसको बताने वाला कोई ना हो। तो आपने इनिशियल स्क्रीनिंग की, उसको बता दिया सैलरी प्लस जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर एक्सेप्टेबल होगा वो आगे मूव करेगा, अदरवाइज वहीं से आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वहीं से आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। देन वी टॉक्ड अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको एक साइनॉप्सिस देता है, एक स्नैपशॉट देता है अबाउट द एम्प्लॉइज और द कैंडिडेट्स, पास्ट बिहेवियर्स, पास्ट एक्सपीरियंस, एजुकेशन, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग, तो जिससे आपको थोड़ा ये आइडिया हो जाता है, जिससे आप ये प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि ये कैंडिडेट इस जॉब के लिए, जिस जॉब के लिए आपने एडवर्टाइज किया है, फिट है या नहीं है। देन वी मूव्ड ऑन टू द एम्प्लॉय टेस्ट, जिसमें हमने कहा कि डिफरेंट किस्म के टेस्ट हो सकते हैं, ओपन एंडेड हो सकते हैं, क्लोज एंडेड हो सकते हैं, क्वेश्चन बेस्ड हो सकते हैं, असेसमेंट सेंटर्स हो सकते हैं, और सैम्पलिंग आप करवा के दे सकते हैं। तो बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो डिफरेंट तरीके से प्रोडिक्ट करके आपको बता सकते हैं कि क्या ये कैंडिडेट जो है वो इस जॉब के साथ, ऑल्सो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिट रहेगा, ठीक तरीके से चलेगा कि नहीं चलेगा। और उसमें आपने टेस्ट में डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस जो जॉब रिलेटेड होते हैं वो आपने किए होते हैं, जिसके आंसर्स आपको बताते हैं कि क्या ये जो कैंडिडेट है ये इस एम्प्लॉयमेंट के लिए, इस जॉब के लिए, इज ही द राइट मैच और नॉट द राइट मैच, तो ये आपको बता देता है। देन वी टॉक्ड अबाउट सम कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यूज, कि ये टूल यूनिवर्सली यूज हो रहा है and it has wide application in the selection process for the employees. ये होता क्या है? Interviews are actually a face-to-face conversation between the employer and the employee or the candidate. तो employer जो होता है, जिसने उस candidate को hire करना होता है, उससे face-to-face बात करता है और उस बात में जज करने की कोशिश करता है कि क्या इसके इंटरेस्ट्स कैंडिडेट के, इसकी एजुकेशन, इसका एटीट्यूड मैच करता है उस जॉब के लिए जिसके लिए आप उसको इंटरव्यू कर रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट है देखना। फिर हमने इस पे बात की कि देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, स्ट्रक्चर्ड वंस एंड द अनस्ट्रक्चर्ड वंस। फिर उसमें आगे मजीद जो है वो डिविजन्स हैं, पार्ट्स हैं उसके। बट स्ट्रक्चर्ड में हमने कहा कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आर दोज इंटरव्यूज इन विच यू आस्क द सेम क्वेश्चंस in the same sequence to all the employees. But in the unstructured interviews, you ask different questions, maybe in different routine, maybe in a different portions, or sometimes they are leading in nature. The questions, they are leading in nature, कि आप एक क्वेश्चन करते हैं and then you start the interview, और फिर जिस तरफ भी इंटरव्यू जो है वो जा रहा होता है, आप उसके साथ साथ चलते चलते क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। जो एक क्वेश्चन से नया क्वेश्चन निकलता है आप वो पूछ लेते हैं, और फिर उस नए क्वेश्चन से एक और नया क्वेश्चन निकलता है वो पूछ लेते हैं। तो ये अगर सीक्वेंस और क्वेश्चंस में डिफरेंस है तो फिर भी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज हैं। तो ज्यादातर रिसर्च कहती है कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आर बेटर फॉर द एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन प्रोसेस, बिकॉज उससे ज्यादा आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा एम्प्लॉय जो है वो ठीक काम कर सकता है, नहीं कर सकता। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, कैंडिडेट जो कंडीशनल जॉब ऑफर है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, परमानेंट जॉब ऑफर है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। और इसी लेक्चर में हमने जो है आरजेपी के बारे में बात की, विच इज योर रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू। जो लास्ट स्लाइड में हम बात कर रहे थे कि आपको कैंडिडेट को फेवरेबल एज वेल एज अनफेवरेबल चीजों के बारे में बताना चाहिए जरूर, because at the time of selecting or accepting that job, अगर कैंडिडेट को पूरा सिनेरियो नहीं पता होता जॉब का, तो जब वो जॉब ज्वाइन करता है तो हो सकता है बिकॉज देर आर डिफरेंट थिंग्स विच ही वाज अज्यूमिंग एंड देर आर डिफरेंट थिंग्स इन रियलिटी, तो आपकी जॉब जो है वो रिजेक्ट करके छोड़ के जा सकता है, जिससे आपका सारा सिलेक्शन का प्रोसेस, सारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, सारा HRP प्लानिंग का प्रोसेस, ये सब जो है वो वेस्ट हो सकता है। इस पे जितनी कॉस्ट आई वो वेस्ट हो सकती है। तो इसलिए इट वाज इम्पोर्टेंट कि जब आप उसको एक्सेप्टेंस लेटर दे रहे हैं, जॉब ऑफर लेटर दे रहे हैं, तो उसी वक्त आप उसको रियलिस्टिक जॉब रिव्यू करके बताएं, और उसी वक्त आप उसको अच्छी विच इज फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बातें दोनों जॉब के बारे में बताएं, ताकि वो एक्सेप्ट करते वक्त एक दफा अपना फर्म डिसीजन ले
और बाद में ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए, क्योंकि छोड़ के जाएगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का टाइम, मनी एंड एफर्ट सारा ज़ाया हो गया और उस कैंडिडेट का भी टाइम, एफर्ट और मनी सब कुछ ज़ाया हो गया। तो इसलिए रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रिमेनिंग जो स्टेप्स हैं हमारे सिलेक्शन प्रोसेस के, उनको हम कवर करेंगे और उनके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो आपके लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।